بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بزم مہروی میں جو آپ سے بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے شیٹیکا یعنی لنگڑی کا درد۔ بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ شیٹیکا پرابلم ہے اور وہ مختلف قسم کی دردوں کی دوائیاں کھاتے کھاتے اپنے بیماری کو اکیوٹ سے کرونک اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لمبے عرصے کی معذوری کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹانگ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ لنگڑا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ارکب النساء کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے جو دو کولے ہیں ان کے پاس سے یہ ریڑھ کی ہڈی میں سے جو ہے وہ دو سپائنل کارڈ میں اس کے قریب سے دو وینز نیچے بڑی ٹانگوں کی دونوں ٹانگوں کی طرف آتی ہیں اور یہ سب سے بڑی وین ہوتی ہیں اور ان کا نام ہی شیٹیکا نرو ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی اس کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کی انفیکشن اور خاص طور پہ گردوں سے بھی انفیکشن آ سکتی ہے اور یہ مسائل آہستہ آہستہ درد اور پھر درد جو ہے وہ کبھی کولے کے پاس تھوڑا سا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے اور پھر تھائی میں اور اس کے بعد نیچے گھٹنے کی طرف، وہ گھٹنے کی بیک سائڈ یا سائڈ سے ہوتا ہوا یہ ہمارے نیچے ٹخنے تک جاتا ہے، ٹخنے کی طرف کو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ پوری ٹانگ میں ٹریول کرتا ہے اور وہ پوری ٹانگ میں جانے کے بعد اس کو لنگڑی کا درد اور بہت سارے ڈاکٹر اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنا مریض آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ اس کا آپریشن کروائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہاں پہ نس دب چکی ہوئی ہے اور اس طرح کے کئی مسئلے ہیں تو آپریشن کروا کر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ ٹانگ اور چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے لیے ڈاکٹروں نے جوتے تیار کیے ہیں کہ ایک جوتا جو ہے اس کے نیچے تو ایڑی ہوتی ہے اور دوسرا جو یعنی جس ٹانگ میں شیٹیکا ہوتی ہے اس کے نیچے ایڑی تھوڑا سا موٹے سول کے ساتھ جو ہے وہ بڑی لگائی جاتی ہے اور دوسری سائیڈ کا جو جوتا ہوتا ہے نارمل ٹانگ والی سائیڈ وہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے ایڑی یا جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ مریض جو ہے تھوڑا سا بیلنس ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ساری چیزیں اس کا حل ہیں؟ کیا آپ ایک ہی جوتا جو ہے وہ ساری زندگی استعمال کرتے رہیں اور اس کے آپریشن اور کئی ساری چیزیں جو ہے وہ کروانی پڑتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج جو ہے وہ بتایا ہے، لیکن وہ علاج جو ہے وہ طبیب ہی کر سکتا ہے، گھر بیٹھ کے ہم خود سے تو کر نہیں سکتے، نہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ماہر طبیب کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ میرے پاس اس کے بے شمار پیشنٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ صحت یاب بھی ہوتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں بلا تمہید آج کے اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب۔ انسانی جسم کا نظام اللہ تعالیٰ نے دو حصوں پر مرتب کیا ہے۔ جسم کے کچھ حصے تو خود کار ہیں یعنی اپنے تسلسل میں کام کر رہے ہیں اور کچھ حصے انسانی مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ جب انسان کے خود کار نظام میں خلل واقع ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں ہو جاتا ہے جو کہ اندرونی بیماری کا اظہار ہوتا ہے۔ دراصل یہی علامات کسی بھی بیماری کی اندرونی تصویر کا بیرونی عکس ہوتی ہیں۔ عام طور پر جسم میں ہونے والے درد بھی خود کار نظام کی خرابی کو واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستوں میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ درد جو ہوتا ہے یہ کسی خرابی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ایک الارمنگ سسٹم ہے، الارم باجتا ہے۔ جیسے کسی پلازے کے اندر، کسی شاپنگ مال کے اندر اچانک کوئی الارم باج اٹھے تو سارے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہیں کوئی ایمرجنسی، کوئی آگ لگ گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو الارم جو ہوتا ہے وہ کسی خرابی کا اظہار ہے، تو درد الارم ہے اور ہمارے جسم کے اندر جو الارمنگ سسٹم ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہمیں اظہار کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں فلاں حصے میں کوئی خرابی، کوئی گڑبڑ کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس الارم سسٹم کو سن کر دیتے ہیں، ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اور یعنی کس طرح بند کرتے ہیں کہ آپ پین کلر دوائیاں لیتے ہیں اور وہ جو درد کی دوائیاں ہیں وہ ہمارے حواس خمسہ کو، جو 5 ہمارے خمس ہیں ان میں سے ایک خمس کو جا کر سن کر دیتی ہیں، جو محسوس کرنے والا اس کو سن کرتی ہیں۔ جب تک وہ سن رہتا ہے آپ کو درد محسوس نہیں ہوتی اور جیسے ہی دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے درد پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو درد کا حل
जो है ना वो दो गोली नहीं होता, या दर्द का हल जो है ना वो पेन मैनेजमेंट नहीं है कि आप दर्द को दबा दो, बल्कि दर्द जिस वजह से है उस सिस्टम को ठीक करें तो तमाम मसाइल जो हैं वो हमारे हल हो सकते थे। लेकिन हम उस तरफ आते ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि नहीं जी डॉक्टर जो टीका लगा रहा है, वो दवाई दे रहा है, गोलियां खा रहा है, लेकिन वो सारा करते करते एक वक्त आता है कि जब आप कहते हैं कि अब वो कोई दवाई असर नहीं करती, लेकिन उस वक्त तक आप काफी देर कर चुके होते हैं। तो इसलिए वक्त से पहले ही तिब्बे नबवी और तिब्बे पुरानी और जो हमारा ईस्टर्न मेडिसिन है उसकी तरफ आए, जहां पे अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो ठीक हो सकते हैं। दर्द की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, मसलन सर दर्द, कमर दर्द, असाबी दर्द, गैंचिया का दर्द, अरकुन निसा का दर्द, हड्डियों का दर्द, और मुख्तलिफ कोई पित्ते का दर्द, कहीं गुर्दे का दर्द, और मुख्तलिफ इस तरह की चीजें जो है हमारे अंदर वो पैदा होती हैं। अब ये मुआलिज का काम है कि वो मरीज की तमाम इलामात, हरकात, सकनात और मुशाहिदात के बाद जिस्म में होने वाले दर्द की दर्जा बंदी करे और उसे एक मखसूस मर्ज के जुमरे में रखे। हम यहाँ जिस दर्द का जिक्र कर रहे हैं वो है अरकुन निसा, जिसको हम शैटिका भी कहते हैं। मौजूदा दौर में ये दर्द बहुत आम हो गया है और इसमें ज्यादातर खवातीन ही मुब्तला हैं। अरकुन निसा उस दर्द को कहते हैं जो कि पीडू पेल्विस कूल्हे के सिरों से शुरू होता है, क्योंकि उसी जगह एक बड़ा अस्ब नर्व जिसको कहते हैं वो मौजूद होता है, जिसको शैटिका नर्व कहते हैं। ये दर्द पीड़ू के सिरों यानी पेल्विक बोन जो होती हैं उनके सिरों से शुरू होकर टांग के पिछले हिस्से से होता हुआ बैरूनी टखने तक महसूस होता है। दर हकीकत ये एक अस्बी मर्ज होता है, यानी इसका ताल्लुक जो है ना हमारे एक असब यानी नर्व से है, और ये न्यूरोलॉजिकल जो पेन होती हैं ये उस जुमरे में आता है। आइए अब देखते हैं कि इसकी इलामात और इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। अरकुन निसा का दर्द आहिस्ता आहिस्ता शुरू होकर शदीद होता चला जाता है और कभी कभी अचानक भी शुरू हो जाता है। इसमें बास औकात मुतासरा टांग भारी हो जाती है और मरीज के लिए उस पर वजन या बोझ डालना काफी मुश्किल हो जाता है। मरीज उस टांग पर वजन डालकर खड़ा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ा कर चलना शुरू होता है, लंगड़ा पान आना शुरू हो जाता है और फिर टांग को खींचना भी जो है वो शुरू कर देता है। सो इस हवाले से इस पे जो है वो हमें वो देखना पड़ेगा कि ये इलामात होती हैं। और अब ये जरा इसको देखते हैं कि इसकी तशखीस क्या होगी, हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे। अमूमन मरीज को मुतासरा टांग पर बोझ डालने की जरूरत पड़े तो वो पाँव के अगले हिस्से पर बोझ डालकर एड़ी को ऊंचा रखता है ताकि शैटिका नर्व पर किसी किस्म का खिंचाव न पड़े। इस मर्ज की सूरत में मरीज टांग को ढीला रखना चाहता है, पाँव को घसीट कर चलता है। मुतासरा टांग में अक्सर बल यानी कुड़ल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और नस खिंच जाती है। मरीज कुर्सी पर टांग लटका कर बैठा हो और घुटने को दबाया जाए तो मरीज को सख्त दर्द महसूस होता है। मरीज टांग को जल्दी जल्दी और बाआसानी पेट की तरफ मोड़ या फैला नहीं सकता क्योंकि खिंचाव से तकलीफ होती है और जरा सी ठंडक भी मरीज के दर्द को बढ़ा देती है। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात, इसका जो कॉज है वो क्या होता है। आइए जरा उसको भी हम देखते हैं। अमूमन कब्ज के सबब ज्यादा देर तक पानी में भीगने, नमदार जगह पर बैठने या सोने, बहुत ज्यादा बोझ वजन उठाने, शदीद झटका लगने, रीढ़ की हड्डी के मोरे हिल जाने, असाबी तनाव, परेशानी, मुसलसल एक ही करवट लेटने, कई घंटों तक मुसलसल बैठे रहना, गलत कदमों से चलने और एक्सीडेंट वगैरह के बायस हो सकता है, क्योंकि इन तमाम सूरतों में शैटिका नर्व में खिंचाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा मरतूब मकामात पर रहने वालों में भी ये मर्ज पाया जाता है। अब जरा इसके इलाज का जायजा लेते हैं कि इसका इलाज जो है वो भी तो करना है। इस मर्ज का इलाज निहायत एहतियात के साथ करना चाहिए। डॉक्टर को दवा का इंतखाब करते वक्त निहायत समझदारी से मरीज के महसूसात व इलामात को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें इलामात के मुख्तलिफ होने पर दवा भी तब्दील हो जाती है। इस दर्द में इलाज के साथ साथ वर्जिश की भी बहुत अहमियत है। इससे मरीज जल्द सेहत की तरफ राग़िब होता है, लेकिन ये मरीज की हालत पर मुनहसर है कि वो कौन सी वर्जिश
सहूलत के साथ बआसानी कर सकता है। मरीज की हालत को पेश निगाह रख कर ही उसके लिए वर्जिश तजवीज की जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करता चलूं, जो बात हमने स्टार्ट में भी की, कि कभी भी इसके ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना, नहीं तो आज तक इसके ऑपरेशन से कोई ठीक नहीं हुआ, बल्कि टांग जो है वो 1.5-2 इंच छोटी हो जाती है। और फिर वो जो बात हमने पहले की कि उसके जूते और उसके सोल और उसके तरफ जो है ना फिर मसाइल, और उसके बाद भी दर्द फिर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करवाने के बाद आपका दर्द खत्म हो गया या दर्द से निजात मिल जाए, बल्कि और कई सारे मसाइल भी आ जाते हैं। इवन दो ऐसे भी लोग हैं जो बाद में अपनी ऑपरेशन और उसमें नाकामी और खराबियों के बायस बाद में अपनी टांग भी गवा बैठे, चलने के काबिल भी नहीं रहे, क्रॉनिक डिसेबिलिटी की तरफ चले गए। अब आइए जरा देखते हैं कि इसकी एहतियात और खास तौर पे इसका परहेज किस तरह का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो हमें इस हदीस को भी ज़हन में रखना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। अर्कुनिसा के दर्द में जिस कदर दवा की जरूरत होती है उसी कदर परहेज और एहतियात की भी जरूरत होती है। मसलन मरीज को ठंडक से हर मुमकिन बचाव की कोशिश करनी चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए और ठंडी चीजों से बचाना चाहिए, और ऐसी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है उससे भी उसको जो है वो बचाना चाहिए। मरतूब, तंग व तारीक जगहों पर रहने से गुरेज करना चाहिए, यानी उसको ऐसी चीजों ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहां पर धूप भी हो, रोशनी भी हो, और मरीज को धूप में जरूर बैठाना चाहिए। मरीज चाहे किसी भी बीमारी में मुब्तला है, धूप में बैठाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मरीज को बैठने और सोने के दौरान अपनी पोजीशन बदलते रहना चाहिए। मरीज को पानी में रहने से एहतियात बरतनी चाहिए। मरीज को कब्ज से बचना चाहिए क्योंकि इसमें शटीका असर जो होती है, नर्व जो होती है, उसमें खिंचाव पड़ सकता है। मरीज को चाहिए कि वो गुस्ल सुबह 11 बजे के बाद और दोपहर 3 बजे से पहले कर लिया करे, और उसके बाद हवा लगने से उसको अपने आप को बचाना चाहिए। और पानी जो नहाने का है, इसके बारे में मैं वैसे एक राय दूं आपको कि मेरी अपनी भी पर्सनल ये कोशिश होती है कि जब भी नहाएं कोशिश करें कि पानी गर्म, नीम गर्म पानी जो है वो उसको इस्तेमाल करें। ताज़ा और ठंडे पानी से नहाना अक्लमंदी कोई दानश्वरी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी बीमारियां और मसाइल हैं और पट्टों के और असाब की तकलीफें इसके अंदर हैं। लेकिन आप यकीन करें ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, मैं उनमें चंद एक को जानता भी हूँ, जो सर्दी में, सख्त सर्दी में भी टैंकी के ठंडे पानी से नहाना अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा पहलवान समझते थे। लेकिन बाद में वो मसाइल जब बिगड़ते हैं फिर उनको समझ आती है कि ऐसे हालात उनके साथ क्यों हुए। मरीज को वजन नहीं उठाना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मशक्कत वाला काम करना चाहिए। मरीज को चाहिए कि वो फर्श पर या किसी सख्त जगह पर हल्का गद्दा बिछाकर सोए। बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव और परेशानी से उसको बचना चाहिए। अल्लाह ताला के निज़ाम से तिब्ब नबवी में, तिब्ब कुरानी के अंदर, यानी जो हमारी ईस्टर्न मेडिसिन है, जो हमारी मशरकी अदवियात हैं, जो हमारा मशरकी तरीका इलाज है, वो ऐन कुरान और जो हमारे तिब्ब नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज उस पे बिल्कुल ऐन मुताबिक है, और बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के ये आपको मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक कर सकता है। लेकिन हम इस वक्त जो है वो मगरबी कल्चर और मगरबी अद्वियात, मगरबी डॉक्टर और मगरबी तरीकाकार के सारे जो है ना वो पैरोकार हुए पड़े हैं। और आप देख लीजिए कि फिर बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े डॉक्टर, डिग्रियां बहुत बड़ी, लेकिन इलाज टके का नहीं है। सारी जिंदगी दवाइयां खाते रहें और बीमारियों को, तकलीफों को, मुसीबतों को अपने अंदर बढ़ाते रहें और गुर्दे फेल करने तक जाते रहें। आपकी मर्जी है, मेरा काम आपको समझाना था, शायद के उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। बज़्म महरवी में डॉक्टर जमील महरवी को, अपने तबीब, अपने मौलिज को, हर्बलिस्ट को, नेचुरोपैथिक डॉक्टर को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप देखते रहें महरवी टीवी, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।